हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। सो वी आर हेयर फॉर क्लास 9 और 9th के वीडियोस बनाने में थोड़ा सा लेट हो गए। इस हफ्ते में 2 वीडियोस डालने थे। एक आपका मंडे को डाला था, एक कल डालना चाहिए था पर वो कल डाला नहीं, कुछ टेक्निकल और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसकी वजह से वो वीडियो नहीं डाला। नाउ आई एम बैक अगेन विद यू एंड टुडे यू विल गेट योर वीडियो दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और हम जो करेंगे वो आज आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा टॉपिक है और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। बट बिफोर बिफोर गोइंग टू द टॉपिक एक दो बातें बतानी है आपको। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपकी स्कूल्स, योर स्कूल्स हैव ओपन इन मैक्सिमम स्टेट्स, जो स्कूल्स हैव बीन ओपन। So, I hope you all are enjoy to going school. Let's enjoy the time. जो pandemic time था, you have spent it very well. You stay healthy, but now it's the time to go to school. Go to school and enjoy your time. Number one. Number second, in some schools of India, there is some people are saying that class 9th and 11th should be conducted online offline. That's not the matter. The online offline कोई matter नहीं है. If you have studied well in this pandemics, because you are at home, sitting at home always 24 hours free, तो अगर आपने स्टडी की होगी तो ऑफलाइन ऑनलाइन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर नहीं की होगी तो ऑनलाइन ले लीजिए तब भी फर्क पड़ता है, ऑफलाइन ले लीजिए तब भी फर्क पड़ता है। सो यू मस्ट बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स, वेदर इट शुड टेक इन द मंथ ऑफ मार्च और इट शुड टेक इन द मंथ ऑफ अप्रैल। किसी मंथ में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड एवर रेडी फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। नंबर थर्ड, एंड यू शुड कमेंट एज मच एज, and if you have any problem, any query in social science in class 9th or in class 10th, you can send me your queries. I have given my email address in description, and you have to send your query. Your query will be solved, your query will be resolved. आपकी query जो है उसको solve किया जाएगा। And in my channel I have started a live session for class 12 students, those whose brothers and sisters are studying in class 12 having geography as a main subject, जिनका geography का main subject है। So we are going to revise the geography. We are going to start a live class for geography of class 12. So those whose brothers and sisters are studying in class 12, they can tell their brothers sisters to have a class on that is Wednesday, that is on Wednesday को आपकी जो है वो क्लास 12th की क्लास जो है वो लाइव हुआ करेगी। If we got a good response in class 12th, अगर हमारे पास रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो we will talk to YouTube, and then we will request the YouTube that they give us 2 days so that their syllabus can be revised before the month of May. We will make another video for class 10th and 12th student for the strategies, how to make strategies, what to do during exams. All these we are going to do. We have lot of हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, खासकर 10th और 12th के साथ। बट 9th क्लास स्टूडेंट्स, डोंट वरी, डरिए मत, कुछ नहीं होता। वी विल आल्सो शेयर समथिंग विद यू, हम भी आपके साथ भी कुछ ना कुछ जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। सो बाय डोंट वेस्टिंग द टाइम, नाउ आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। और बच्चा लोग, पहले भी बताया था on Monday, that coming Monday, एक मंडे परसों आ रहा है वो नहीं, नेक्स्ट मंडे
from next Monday, that is I think 21st of February. It is Sunday, and 22nd February it is Monday. From 22nd Feb, we are introducing a new faculty for your Hindi grammar, and that will be a crash course for class 9 as well as class 10, and that is especially for the Hindi course A students. After that, if they get, the faculty will have a time, then we will have a crash course for Hindi course B. तो ग्रामर तो चेंज नहीं होगा, आपकी बुक्स चेंज हो सकती है, ग्रामर चेंज नहीं होगा. सो तो both the students of course A and B can join this to have to improve your grammar. So we are starting with a topic, और टॉपिक हम कर रहे थे आपका ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवेजेस एंड एंड टू द प्रिविलेजेस. ये टॉपिक कर रहे थे. मैं बोर्ड पे लिख देता हूं टॉपिक आपको. ग्रोइंग होता है इंक्रीजिंग, बढ़ना. ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड wages and to privileges. ये आपका टॉपिक हम कर रहे थे, और इसको हमने जो है, जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो में जो है वो टॉपिक देख सकते हैं. हम यहाँ पे जो लास्ट में बात कर रहे थे, जब हमारा वीडियो एंड हुआ था, तो हम यहाँ पे दो फिलोसफर्स की बात कर रहे थे. एक फिलोसफर का नाम था जॉन लॉकी, और दूसरे जो फिलोसफर थे उनका नाम था जीन जैक्वस रूसो. जीन जैक्वस रूसो. ये दोनों आपने फिलोसफर्स के नाम जो है वो याद रखने हैं. ठीक है, ये दोनों फिलोसफर्स के नाम आपने याद रखने. So Rousseau carried out the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representative. तो जॉन लॉकी ने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट में जो था कुछ आइडियाज दिए थे, कोई डॉक्ट्राइन्स दी थी, दो डॉक्ट्राइन दी थी, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्क्स. ये इन्होंने दो डॉक्ट्राइन्स दी थी अपनी बुक, जो बुक का नाम था दैट इज टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट. और इसी को ही जॉन लॉकी के इसी आइडिया को जो था वो जो रूसो थे, जो ये जो फिलोसफर थे, इन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, आगे लेकर गए थे. अब इनके आइडिया को ये क्यों आगे लेकर गए? क्योंकि अगर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे कभी आगे, तो आप ये पढ़ेंगे कि जॉन रूसो वॉज डिसिपल जानते हैं, डिसिपल होता है शिष्य. डिसिपल किसको बोलते हैं? शिष्य को बोलते हैं. डिसिपल ऑफ जॉन लॉकी. इसलिए इन्होंने इनके आइडिया को कैरी फॉरवर्ड किया था, आइडिया को आगे बढ़ाया था. इन्होंने क्या बोला? प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन्होंने क्या किया? प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रपोजिंग मतलब इन्होंने एक तरह की गवर्नमेंट प्रपोज की थी, बताई थी तो किस तरह की गवर्नमेंट जो है, प्रपोज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की फॉर्म किस तरह की होनी चाहिए थी, ये इन्होंने प्रपोज किया था. किसने प्रपोज किया था? रूसो ने जो था वो प्रपोज किया था. बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट. किसके बेस्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट? ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किसके बेस पे होनी चाहिए? ये बेस होनी चाहिए आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे. ठीक है जी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होनी चाहिए. अब ये कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है. तो ये दो लोग कौन कौन होंगे? दो होंगे बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. अब कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में होगा? कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो दो लोगों के बीच में होगा, और वो होगा जो लोग हैं किसी भी कंट्री के. ठीक है, पीपल ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट दीज पीपल
फॉर्म, जो गवर्नमेंट ये लोग बनाएंगे उनके बीच में जो है ये जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इन द स्पिरिट ऑफ लॉस Montes proposed a division of power within the government between the legislative, the executives and the judiciary. अब ये बात आप ध्यान से सुनिएगा क्लास 9, क्योंकि ये बात आपके क्लास 10 के एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर है वहां भी काम आएगी। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर है वहां भी ये बात काम आएगी आपके। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, लिसन इट वेरी केयरफुली, इस बात को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। इसके बाद एक और जो थे वो फिलोसफर आए थे, दो फिलोसफर हमने पढ़ लिए, एक और फिलोसफर आए थे और इन फिलोसफर्स का नाम था मॉन्टेस्क्यू, Montesquieu, मॉन्टेस्क्यू। ये भी एक फिलोसफर थे, ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसफर। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या नाम था इनकी बुक का? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये नाम था इनकी बुक का। किसकी? मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम था। और इन्होंने इस बुक में जो था कहा था, he has said that the power should be divided between the different organs of the government. क्या कहा था? powers should be divided among the different organs of the गवर्नमेंट। अब ये ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? गवर्नमेंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने नहीं लिखना है। ठीक है, ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्गन्स इन्होंने 3 बताए थे। He had told about 3 organs। अब 3 ऑर्गन कौन कौन से? द लेजिस्लेटिव, the representative choose by the people, those are known as the legislative, such as the MLA, MPs, all these are known as the legislative। ठीक है, पता ना, हम MP और MLA चुनते हैं। अब मेरे को कौन, आप में से आप सभी से 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर नहीं आते कमेंट बॉक्स में, मेरे को आप लोग जो है वो इन दोनों के जो है वो फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क है। दैट इज MCA नहीं है, ये MLA है, MLA एंड MP, इन दोनों की आप मेरे को जो है वो कमेंट बॉक्स में, जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो आपके इन दोनों की फुल फॉर्म जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजेंगे। और जो सबसे पहले भेजेगा उसका नाम मेरे व्हाइट बोर्ड पर आएगा। मैं व्हाइट बोर्ड पे जब नेक्स्ट वीडियो शूट करूंगा या नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा, तो अगर आप में से किसी का कमेंट आता है तो मैं उसका नाम अपने व्हाइट बोर्ड पर बड़े अक्षरों में जो है इन कैपिटल लेटर्स जो है वो लिखूंगा, जो इसका आंसर मुझे सेंड करेगा। ठीक है, द लेजिस्लेटिव, दूसरा बोला द एग्जीक्यूटिव्स। अब ये एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? Those who implement the laws, वो लोग जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सुना होगा, IAS ऑफिसर सुना होगा, IPS ऑफिसर सुना होगा, या आपने जो है वो आपके जो है वो सुने होंगे, IRS ऑफिसर सुने होंगे, IFS ऑफिसर सुने होंगे। ये जितने भी होते हैं सबको अपने अपने डेफिनेट की फुल फॉर्म पता ना, IAS, IPS, IRS, IFS। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? IAS, IPS, IRS, IFS, पता नहीं इन सब की फुल फॉर्म्स क्या क्या होती है? ठीक है, नहीं पता? यू डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ दीज? IAS stands for Indian Administrative Services,
जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, जैसे आपके किसी डिस्ट्रिक्ट के जो डिविजनल कमिश्नर वगैरह होते हैं, ये आईएएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, जो आपके जो है वो सेक्रेटरी या अपर सेक्रेटरी या अवर सेक्रेटरी, ओवर सेक्रेटरी बोलते हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज बोलते हैं, ऑल दीज आर द आईएएस ऑफिसर्स। ये सारे के सारे आपके आईएएस ऑफिसर होते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विसेज। जैसे जो आपके पुलिस में जो आपके एसपी होते हैं या एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, एसपी मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उससे ऊपर के जो रैंक्स आते हैं आपके आईजी, डीआईजी, डीजीपी, ऑल दीज बिलोंग्स टू द आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। आईआरएस, आईआरएस स्टैंड फॉर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है, जो आपके इनकम टैक्स वगैरह में जो कमिश्नर वगैरह होते हैं वो इसी सर्विस से निकलते हैं, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम से। और आईएफएस, जो आपके फॉरेन में एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं या फॉरेन मिनिस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जो हायर पोस्ट पे काम करते हैं, वो सारे कौन होते हैं? दोज बिलोंग टू आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। और यही लोग जो है वो फॉरेन एम्बेसीज, इंडिया की तरफ से फॉरेन एम्बेसीज में जाते हैं या इंडिया की तरफ से यूनाइटेड स्टेट में जाते हैं और वहां पे जो है वो काम करते हैं। ठीक है जी, ये दीज आर नोन एज द एग्जीक्यूटिव्स। दीज क्या, ये इनका क्या काम होता है? दीज इंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव मीन्स द पीपल चूजन बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। वो उन जो लॉ इन्होंने बनाया उसको ये सारे के सारे जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। और तीसरा आता है आपका जुडिशरी। जितने भी आपके कोर्ट्स होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, ऑल दीज कोर्ट्स कम अंडर द जुडिशरी। तो इसमें इन्होंने जो था अपनी बुक, कौन सी बुक बताई मैंने आपको? द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने जो था वो इस वे में डिवाइड किया था। This model of government was put into force in USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. अब ये जो मॉडल था वो कहाँ अपनाया गया? हमारे इंडिया में भी यही मॉडल अपनाया गया, ये बताता हूँ। हमारे इंडिया में भी यही मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया गया। दिस मॉडल इज अडॉप्टेड इन इंडिया। यूएसए में जो था वो यही मॉडल अडॉप्ट किया गया जब उसकी 13 कॉलोनीज गॉट इंडिपेंडेंट। किससे इंडिपेंडेंट थे इनको? गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन। सोचो ब्रिटेन कितना पावरफुल, इतनी सी कंट्री है, अगर आप वर्ल्ड के मैप पे देखें तो इतनी सी कंट्री है ब्रिटेन। लेकिन यूएसए जैसी जो कंट्री थी उसके ऊपर भी, उस यूएसए भी इज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। ठीक है, तो वहां पर भी ये सेम मॉडल जो था, जो मॉन्टेस्क्यू ने बताया था, वो अडॉप्ट किया गया आफ्टर द 13 द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। अब इसके अलावा ये वो आपकी बुक बोलती है जो आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब आपने जो है वो अपनी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक में जो है वो क्या पढ़ा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हु विल डिफाइन द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन? कैसे डिफाइन करेंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आई कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दैट set of rules and regulation to run the country how the government will run, those rules and regulations are laid in the constitution. तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो था वो आपका इस तरह का जो था वो आपका वो ये जो सारी चीजें थी, और इसके साथ साथ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी गई हैं वो, और इसके अलावा जो आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जानते हैं ना फंडामेंटल राइट्स,
ये भी आपने जो है वो क्लास 9th में पढ़े होंगे। जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आपके, ये फंडामेंटल राइट्स भी आपके जो है वो कहां से आए हैं? ऑल दीज आर गिवन बाय द फ्रेंच थिंकर्स। ऑल दीज आर गिवन बाय द फ्रेंच थिंकर्स। ये सारी चीजें जो है वो फ्रेंच थिंकर्स या फ्रेंच फिलोसफर्स ने जो है वो दी है। ऑल दीज आर गिवन बाय द फ्रेंच फिलोसफर्स और फ्रेंच थिंकर्स। The idea of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among the people through books and newspapers. अब ये जितने भी आइडियाज आपके जो थे वो फिलोसफर्स ने दिए, चाहे वो किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, किसके कैसे पावर्स डिवाइड होनी चाहिए, कौन से फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, ये सारे के सारी चीजें जो थी वो कहां डिस्कस की जाती थी? फ्रांस में। ऑल दीज वर डिस्कस्ड इन द कॉफी हाउसेस, और इन द कॉफी हाउसेस में या सैलून्स में जो थी वो डिस्कस की जाती थी। डू यू नो व्हाट इज सैलून्स? किसको बोलते हैं सैलून्स, पता है ना? हमारे यहां बार्बर बोलते हैं, वहां सैलून्स बोलते हैं। जहां पे आप बाल कटवाने जाते हैं, दोज आर नोन एज सैलून्स। वो जहां आप जाते हैं वो बार्बर शॉप होती है। जब वही शॉप जो है वो एक शोरूम की तरह हो जाता है, देन इट बिकेम्स अ सैलून। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, वहां पे आपके बाल काटे नहीं जाते, वहां पे आपके बालों को जो है वो डाई किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। ठीक है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो दोज आर नोन एज द सैलून्स। तो सैलून्स में जो थी इन फ्रेंच थिंकर्स की बातें जो थी वो डिस्कस होती थी। इसको सैलून्स में, इसके अलावा आपकी कॉफी हाउसेस, जहां लोग बैठकर कॉफी पीते थे, वेयर डिड पीपल डिस्कस द थिंग्स, वहां पर जो थी इन फ्रेंच थिंकर्स की बातें जो थी वो लोग डिस्कस करते थे। इसके अलावा आम पब्लिक तक ये बातें कैसे पहुंची? कॉफी हाउस तक तो सब नहीं जा सकते, या सैलून्स में तो सब एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इन थिंकर्स की बातें जो थी वो लोगों तक कैसे पहुंचती थी? इट इज थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो थी वो इनकी बातें जो थी वो आम पब्लिक तक पहुंचती थी। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. अब जब ये बुक्स और न्यूज़पेपर्स लोगों तक पहुंचती थी, तो जैसे आपने गांव में चौपाल देखा होगा। चौपाल क्या होता है? चौपाल में एक जो है वो एक कोई पीपल का पेड़ होता है, उसकी तरफ चारों तरफ चबूतरा बना होता है। उस चबूतरे पे सारे लोग शाम के टाइम मिलकर बैठते हैं और गप्पे मारते हैं, डिस्कस करते हैं। तो उसी तरह से जो था वहाँ पर जो, क्योंकि हम पॉपुलेशन जो थी वो इतनी लिटरेट नहीं थी, तो लिटरेट ना होने की वजह से जो कोई एक पढ़ा लिखा होता था वो इन बातों को जो था वो लाउडली स्पीक करता था, जोर जोर से पढ़ता था, ताकि उन लोगों को पता लग सके जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, दोज हु डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। द न्यूज दैट लुईस 16 planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. अब लुईस 16 की ये जो न्यूज थी, क्या करना चाहता था लुईस 16? कौन था लुईस 16? मैंने आपको जो है वो फर्स्ट वीडियो में बताया था कौन था ये लुईस 16। ही वॉज द किंग ऑफ द फ्रांस। तो जब ये लुईस 16 जो था वो आपके टैक्सेस जो था वो इंक्रीज करना चाहता था। ही वांट टू इंक्रीज द टैक्सेस। तो ये न्यूज जो थी जब पब्लिश हुई, ठीक है, प्लान टू इंपोज फर्दर टैक्सेस, और ज्यादा टैक्सेस जो था वो इंक्रीज करना चाहता था, ताकि क्या हो सके? टू एबल टू मीट हिज एक्सपेंसेस, ताकि वो एक्सपेंसेस को मीट कर सके। ठीक है, ताकि वो जो उसके एक्सपेंसेस थे उनको पूरा कर सके। दिस जनरेटेड एन एंगर बिटवीन द कॉमन पीपल ऑफ द फ्रांस। तो इसकी वजह से लोगों में जो था वो गुस्सा आना शुरू हो गया। ठीक है, ये आपका जो था वो यहां तक जो है वो आपका फर्स्ट
जो टॉपिक था, जो आपका ये था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब ये रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुई, क्रांति कैसे स्टार्ट हुई, वो हम जो है वो आगे करेंगे, ठीक है। द आउटब्रेक, आउटब्रेक होता है शुरू होना, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, किस तरह से जो है वो क्रांति शुरू हुई, ये हम अभी शुरू करेंगे। ये आपका सेकंड टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। लुईस 16 had to increase taxes for reason you have learned in the previous section। क्यों लुईस 16 को टैक्सेस जो थे, मैंने आपको बताया लुईस 16 को टैक्सेस जो थे वो इंक्रीज करने पड़े थे, ठीक है। लुईस 16 वांट टू इंक्रीज द टैक्सेस, और टैक्सेस उसे क्यों इंक्रीज करने पड़े थे ये मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें बताया है। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। अब आप क्या सोचते हैं कि उसने टैक्सेस को कैसे इंक्रीज किया होगा। इन फ्रांस of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। अब जो ओल्ड रिजीम था, ओल्ड रिजीम मतलब ओल्ड जो टाइम पीरियड था, कहां पे, फ्रांस में। द ओल्ड रिजीम इन फ्रांस कुड, हालांकि यहां पे मोनार्की थी पूरी तरह से, ठीक है, देयर इज मोनार्की, मोनार्की थी पूरी तरह से, लेकिन मोनार्की होने के बावजूद भी किंग अपनी इच्छा से जो था वो टैक्सेस को जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकता था। द किंग कैन नॉट इंक्रीज द टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। अपनी इच्छा से टैक्सेस बढ़ा दे, अपनी इच्छा से टैक्सेस कम कर दे, वो ऐसा नहीं कर सकता था। Rather he had to call a meeting of the state journals which would then pass his proposal for new taxes। अब तो फिर टैक्सेस कैसे पास होते थे, अब क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ द टैक्सेस पासेस इन द फ्रांस। तो टैक्सेस के लिए क्या करता था, जो किंग होता था, ये जो लुईस 16 था, ही हैज टू कॉल अ मीटिंग, कॉल मीटिंग, उसे मीटिंग बुलानी पड़ती थी, और मीटिंग किसकी बुलानी पड़ती थी, स्टेट जर्नल्स की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। He has to call the meeting of state journals। स्टेट जर्नल की मीटिंग जो थी वो बुलानी पड़ती थी, ठीक है। और वहां पर था वो क्या होता था, वहां पर जो है वो स्टेट जर्नल जो थे वो टैक्स प्रपोजल जो थे वो इंट्रोड्यूस करते थे, और इंट्रोड्यूस करने के बाद जो था वो आपका टैक्सेस जो थे वो इंपोज किए जाते थे। द स्टेट जर्नल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी to which the three states sent their representatives। अब स्टेट जर्नल क्या था, व्हाट इज स्टेट जर्नल। स्टेट जर्नल की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है कि इट इज अ पॉलिटिकल बॉडी, जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती ना, वैसे पॉलिटिकल बॉडी होती थी, ठीक है, जिसमें क्या कर दिया था, जिसमें 3 स्टेट्स जो थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सेंड करते थे। However, monarch alone could decide when to call a meeting of this body। The last time it was done in 1614। monarch के हाथ में क्या था, किंग के हाथ में क्या था, किंग कैन ओनली डिसाइड दैट व्हेन टू कॉल अ मीटिंग, जब उसके पास टाइम हो वो तभी मीटिंग बुला सकता था, स्टेट जर्नल्स के कहने पर वो मीटिंग्स नहीं बुला सकता था, ठीक है। दिस इज द डिसीजन ऑफ द मोनार्क। और according to your book, according to NCERT, the last meeting of the monarch of the state journal was held in 1614। 1614 1614 में आपके स्टेट जर्नल की जो थी वो क्या हुई थी, लास्ट मीटिंग जो थी वो हुई थी। With this, thank you very much। I hope you will like, share and subscribe this video and give as much as comments। और जो होमवर्क दिया है वो कमेंट्स में आंसर देना है, you have to answer।